Hello everyone, welcome to the channel. So in today's video we are going to continue our session of World Geography in which we are going to complete 450 MCQ questions of the World Geography. Now till question number 129 we have already covered. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन वॉच द डिस्क्रिप्शन. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यू कैन वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट. Now in today's session you will get to know about the various deserts, various lakes and various mapping questions about the world geography. In addition to that, you will also get to know about the questions of the physical geography and the concepts that is related to physical geography. Okay, but before starting the lecture I would like to tell you that a current affair theme wise program, theme wise quiz is currently being held on the Telegram channel. So you can join the Telegram channel. You can see the details of that quiz there, जहाँ पे आपके एक साल की करंट अफेयर्स, थीम वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें कि 500 MCQs के थ्रू हम उसको कवर कर रहे हैं. यू कैन ज्वाइन दैट इनिशिएटिव. So let us start the session. Also, if you want the PDF, you can see the pinned comment section. You will find the link to download the PDF from there only. Now the first question is, which lake dried up and turned into a desert in Mali? So to know about the lakes of Mali, you need to know about the lakes जो यहाँ पे दी हैं. Now यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा, दिस इज नॉट लेक फैग्यूबिन जैकोबिन, दिस इज लेक फैग्यूबिन. ठीक है. Now Mali में the name of the lake that has dried up and turned into a desert is Lake Fagubin. Now if I talk about Lake Fagubin, this is located in Mali. And if we talk about the other options, यहाँ पे Lake Victoria की अगर मैं बात करूँ तो it is there in the countries of Uganda as well as Kenya as well as Tanzania. ठीक है. इन तीन कंट्रीज़ में दिस लेक विक्टोरिया एक्सटेंड्स. एंड लेक विक्टोरिया इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर द लेक सुपीरियर. एंड ये लेक सुपीरियर कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, बट यू नीड टू नो अबाउट द कंट्रीज जहाँ पे ये लेक विक्टोरिया है, दैट आर युगांडा, केनिया एंड तंजानिया. Lake Fagubin we have seen, it has turned up into a desert and this is in Mali. Now talking about Lake Tanganyika. Now this lake extends in the Democratic Republic of Congo and Tanzania and Zambia. Okay, so in तीन countries में Lake Tanganyika है and it is also the longest freshwater lake. It is the longest freshwater lake in the world. Talking about the lake Malawi, this Malawi lake is a UN World Heritage Site. UN World Heritage Site है ये, and this extends to the country of Malawi. Then ये है तंजानिया में and then है ये मोज़म्बिक में. यहाँ पे एक कॉमन चीज़ ये निकल के आई है कि तंजानिया में हमने देखा कि तंजानिया में हमारी लेक विक्टोरिया भी है, लेक तंगनिका भी है एंड लेक मलावी भी है. सो ये फैक्ट से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो तंजानिया में अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, दैट इज़ माउंट किलिमंजारो. ओके, आई होप कि ये फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. लेट्स नाउ मूव टू दी अनदर क्वेश्चन. विच लेक स्ट्रैडल्स द बॉर्डर बिटवीन द बोलीविया एंड पेरू? सो बोलीविया एंड पेरू के बॉर्डर पे है लेक तितिकाका. ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेक है, इसका नाम आपको याद रखना है. ऑल्सो लेक तितिकाका इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक. ओके, एंड ऑल ऑफ दीज लेक मारासियाबो, लेक पूपो एंड लेक निकरागुआ, all of these are also in South America and Central America, but Bolivia and Peru के border पे है लेक तितिकाका and it is also the highest navigable lake of the world. Next is, which lake in Russia is the deepest freshwater lake in the world? So this is a pretty easy question. ये है हमारी लेक बैकाल. Okay, now if I talk about the deepest point in the ocean, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द डीपेस्ट पॉइंट इन ऑल ऑफ द 5 ओशंस, दिस इज़ लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन.
ठीक है। एंड पैसिफिक ओशन में भी देयर इज अ प्लेस नोन एज द मैरियाना ट्रेंच. This is the deepest point in the earth. Okay, if I talk about the Java or the Sunda Trench, if I talk about the Java and the Sunda Trench, this is in Indian Ocean. Indian Ocean के region में है. I hope the facts are clear now. Next is between which two lake is the Niagara Falls located. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि the Niagara Falls है, this is on the border of Canada एंड द यूएसए. एंड यूएसए का जो न्यूयॉर्क स्टेट है वहाँ पे है ये नायग्रा फॉल्स. सो विच टू लेक्स इज बिटवीन द नायग्रा फॉल्स? इट इज़ द लेक एरी एंड लेक ओंटारियो. ठीक है, लेक ओंटारियो इज ऑन द यूएसए पार्ट. ठीक है, सो लेक एरी एंड लेक ओंटारियो इज बिटवीन द नायग्रा फॉल्स. नेक्स्ट इज विच ग्रुप ऑफ लेक इज इंटायरली विद इन द यूएसए. Okay, so this is the Michigan and the Great Salt Lake, and these are important. Michigan is also a state in USA, so यहाँ से आप पता लगा सकते हैं. And in addition to that, the Great Salt Lake, this is also in USA. एक यहाँ पे एक the Great Dividing Range भी है. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये आप ध्यान रखना. ठीक है, the Michigan is the only Great Lake fully within the USA. So I hope आपको ये समझ आ गया होगा. Next is which is the longest freshwater lake by length? Just right now we have dealt with this question, and this is the Lake Tanganyika. And for the revision purposes, you need to know this extends in Tanzania. Then है हमारा Democratic Republic of Congo, and then there is Uganda. सॉरी, नॉट युगांडा बट तंजानिया. तंजानिया तो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड देन जाम्बिया है ऑफ कोर्स. ओके, लेक विक्टोरिया जो हमने देखी थी, दिस इज इन तंजानिया, दिस इज इन युगांडा एंड केन्या. आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ. नेक्स्ट इज विच स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका. अब ये जो गिब्राल्टर स्ट्रेट है, दिस इज़ इन द रीजन ऑफ यूरोप, सो ये तो आंसर नहीं हो सकता. मलाका स्ट्रेट इज़ इन द इंडोनेशिया पार्ट. ठीक है, इंडोनेशिया पार्ट इज बेसिकली ये समझ लो कि दिस इज़ इन द इंडियन ओशन का रीजन. एंड पाक स्ट्रेट, तो दिस इज़ इन द, इट सेपरेट्स द इंडिया मेन लैंड टू श्रीलंका. सो करेक्ट आंसर हमारा एलिमिनेशन के थ्रू बेरिंग स्ट्रेट ही आएगा. ओके, now the Bering Strait connects the Arctic Ocean with the Bering Sea between the Russia and Alaska. Okay, so the Bering Strait, it separates Asia from the North America. Which strait connects the Red Sea to the Indian Ocean? अब मलाका एंड सुंडा ये तो इंडियन ओशन में है. अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड बैबल मंडेब में. बट रेड सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से बैबल मंडेब. ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज it connects the Gulf of Oman. ठीक है, एंड कौन से एरिया को कनेक्ट करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, दिस Bab el-Mandeb Strait, it lies between the Yemen and Djibouti area, and this Hormuz connects the Persian Gulf with the Arabian Sea. Which canal links the Lake Superior with Lake Huron? So this is the Suez Canal. Okay, next is which canal connects the Baltic Sea with the Elbe estuary? This is the Kiel Canal. These are just the facts, जो important चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं. And this Elbe estuary, all of this is in Germany. Okay, जर्मनी में टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो देयर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज ब्लैक फॉरेस्ट. ब्लैक फॉरेस्ट का जो एरिया है दिस इज इन जर्मनी, ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट नेविगेशन कैनाल इन द वर्ल्ड बाय ट्रैफिक. सो ट्रैफिक की मैं बात करूँ, सो दिस इज़ द सुएज कैनाल. ओके, पनामा कैनाल भी है, इट इज़ इन साउथ अमेरिका. बट रिपोर्टेडली अगर मैं शिप्स की मूवमेंट की बात करूँ, कार्गो हैंडलिंग की बात करूँ, सो दिस सुएज कैनाल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एंड एक बात और याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अभी न्यूज़ में रहा है. वाई? बिकॉज रिसेंटली आफ्टर द
tightening of the ties between the Iran and the USA and Israel, Iran also, the government, the parliament of Iran also passed a resolution to close the Strait of Hormuz. Okay, so ये important है, ये ध्यान रखना आप. Which reef is located off the northeast coast of Australia? So we know that Australia में there is the Great Barrier Reef, which is the largest corals, which constitute the largest corals in the world. So ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज वर्टिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर. नाउ यहाँ पे कुछ पोर्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिजिकल ज्योग्राफी का, सो दैट द थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल. टॉकिंग अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, अगर मैं लेयर्स की बात करूँ ना, तो सबसे लोएस्ट लेवल पे है हमारी ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेवल. ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबव इज द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव इज द मीसोस्फेयर. ओके, देन आता है हमारा आइनोस्फेयर, देन है अल्टीमेटली एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर इज द लेयर आउटर स्पेस वाला पार्ट है. ओके, ट्रोपोस्फेयर में मोस्ट ऑफ द वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं. स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द लेयर जहाँ पे ओजोन इज़ फाउंड. ठीक है, अब ओजोन के बारे में बात करूँ, सो ओजोन इज़ such a type of gas that has both positive as well as negative impact on the environment. Why? Because when ozone is found at the lower levels, मतलब कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ट्रोपोस्फेयर में, when the ozone is there at the troposphere, it is harmful, it acts as a pollutant. But ozone at the layer of stratosphere, it helps to filter the ultraviolet rays. ठीक है, यूवी रेज को यहाँ पे रिपेल करने का काम करती है ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में. ठीक है, मीसोस्फेयर की मैं बात करूं तो इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर. मीसोस्फेयर इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, एंड जितने भी हमारे मीटियोर होते हैं, मीटियोराइट्स होते हैं, ऑल ऑफ द मीटियोराइट्स दीज बर्न इन द मीसोस्फेयर ओनली. आइनोस्फेयर हमारी ऐसी लेयर है विच इज़ यूज्ड फॉर द रेडियो टेली कम्युनिकेशंस. बिकॉज आइनोस्फेयर वर्ड ही खुद में मीन करता है आयंस. आयंस मीन्स वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सो दीज हेल्प्स टू कैरी द रेडियो वेव्स. ओके, सो रेडियो कम्युनिकेशन जो भी इस्टेब्लिश होता है ये आइनोस्फेयर में होता है. ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. नाउ अब एवरेज वर्टिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर क्या होगा? सो 12 किलोमीटर्स हमारा लोवेस्ट लेवल पे होता है. सो द एवरेज वर्टिकल एक्सटेंट इज अराउंड 12 किलोमीटर्स. ओके, विच एटमोस्फेरिक लेयर होस्ट द मोस्ट वेदर एक्टिविटीज? सो ऑब्वियसली दिस इज द ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्टेबल एयर नहीं होती है, सॉरी स्टेबल एयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में. ठीक है, दैट इज़ वाई नो extent of air activities, no extent of the atmospheric activities is being seen in the stratosphere. Next है हमारा, in which layer is ozone concentrated? Just right now I told you it is concentrated in the stratosphere. ठीक है, next है which layer is critical for radio waves transmission? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ. दिस इज़ द आइनोस्फेयर. इफ़ यू वांट टू रीड द डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है. अब व्हाट इज़ इंसोलेशन? नाउ इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. इट इज़ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ओके, नाउ ये तो रही हमारी सोलर रेडिएशन की बात. बट इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट द अर्थ इज हीटेड बाई, यहाँ से ऑप्शन में अगर आपको दूं कि अर्थ इज मेनली हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन और डिफ्लेक्टेड लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इन द एटमॉस्फेयर, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, बट दीज आर ओपेक टू द आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस.
दैट इज़ वाई जब वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ को हिट करती है एंड दीज गेट रिफ्लेक्स बैक, तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ट्रैप कर लेती हैं इसको, इन रेडिएशंस को, एंड देन द एटमोसफियर गेट्स हीटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, अब यही जब ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होंगी तो ये मोर क्वांटिटी ऑफ रेडिएशंस को ट्रैप करेंगी, एंड ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करने का मतलब है मोर हीट विल बी देयर, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है दैट इट कैपिटलाइजेस। आई होप कि बहुत लेमैन बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने बताया है आपको। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू आर एबल टू कैच व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, नेक्स्ट इज इंसोलेशन। क्या होता है? इट इज़ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। विच रीजन ऑन द अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम सोलर हीट। अब मैक्सिमम सोलर हीट के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने ये बोला कि दिस इज सन एंड ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ आपको हल्का सा टिल्टेड नज़र आ रहा होगा, ठीक है, टिल्टेड होने की वजह से ही जो सन की रेज है ना ये डायरेक्टली इक्वेटर पे ज़्यादा फॉल नहीं करती हैं। इक्वेटर के जो हल्का सा ऊपर का रीजन है दैट इज़ द 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ के अराउंड का जो रीजन है, दिस रीजन में द अर्थ जो है इट रिसीव्स द मैक्सिमम सोलर हीट। अब यहाँ पे अगर इफ़ आई टॉक अबाउट दी ऑप्शन से ना पोल्स की अगर मैं बात करूँ तो पोल्स तो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल है, तो यहाँ पे तो कोल्ड टेम्परेचर होता है, यहाँ पे तो सन की रेज जाती ही नहीं है, क्योंकि अगर जाती तो ये दिस रीजन वुड नॉट बी दैट मच कोल्ड। इक्वेटर, अब इक्वेटर में क्या होता है? इक्वेटर में क्लियर स्काइज होते हैं। अब क्लियर स्काइज होते हैं इक्वेटर में, तो ये मुझे बताओ स्काइज क्लियर है, क्लाउड जब रेज को क्लाउड्स जब होंगे ही नहीं तो जो सन रेज आएंगी वो तो रिफ्लेक्ट होकर सीधा बाहर चली जाएंगी, तो क्या इक्वेटर पे इतना ज़्यादा हीट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो 20 डिग्री जो लैटिट्यूड बेल्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लियर स्काइज होते हैं एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ये एब्जॉर्प्शन रेट को यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं एंड यहाँ पे रेज भी ज़्यादा फॉल करती हैं। दैट इज़ वाई हमारा 20 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो सोलर हीट होती है। विच क्लाउड टाइप कॉजेज इंटेंस रेनफॉल्स एंड थंडरस्टॉर्म। अगर मैं अब आपको क्लाउड की बात बताऊं तो जो ग्राउंड लेवल पे क्लाउड्स होते हैं वो होते हैं सबसे पहले स्ट्रेटस, देन है निम्बस, देन होता है हमारा क्यूमुलस एंड देन होते हैं हमारे सिरस क्लाउड जो होते हैं ना ये फेदर शेप्ड में होते हैं, क्यूमुलस हमारे कॉटन वुड शेप में होते हैं एंड सबसे ज़्यादा जो इंटेंस रेनफॉल के लिए जाने जाते हैं दैट इज़ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, सिरस एंड स्ट्रेटस ये माइल्ड वेदर क्लाउड्स होते हैं। नेक्स्ट इज अब साइक्लोन्स का हमारा टॉपिक है यहाँ पे। विच साइक्लोन अफेक्ट्स द फिलीपींस रीजन? सो विली विली दैट इज़ इन द एरिया अराउंड ऑस्ट्रेलिया। टाइफून जो है ये हमारे फिलीपींस के एरिया में होता है एंड इट इज़ इन द एरिया अराउंड चाइना एंड जापान के एरिया में, दिस इज़ नोन एज टाइफून। हरिकेन इट इज़ नोन इन द एरियाज ऑफ द अटलांटिक, मेनली यूएसए वगैरह के एरिया में, दिस इज़ नोन एज अटलांटिक, एंड इंडियन ओशियन के एरिया में इंडिया में दिस इज़ नोन एज साइक्लोन। ओके, हरिकेन्स आर अटलांटिक बेस्ड, विली इज इन ऑस्ट्रेलिया। What indicates a likely storm when using a barometer? तो sudden drop जब होता है प्रेशर में it indicates the storm like weather is incoming. Now why is dew not found on the cloudy days? ठीक है, why? Because the cloud reflect the earth radiation back. So dew के formation में clear skies का होना ज़रूरी है। Okay, the cloud cover traps heat, preventing the cooling necessary for the dew formation. So dew formation के लिए clear skies चाहिए होता है। Now what causes humidity in the atmosphere? So humidity is directly related to the moisture present in the air. So हमारे यहाँ पे D correct answer हो जाएगा। Next is which clouds are formed due to the condensation and bright
and these bring light rains. These are the stratus clouds. Okay, these are the flat clouds and bring drizzles over the overcast sky. Cumulonimbus clouds जो हैं these are associated with the thunderstorms. Cirrus मैंने बताया था ये हाई क्लाउड्स होते हैं. सो यहाँ पे स्ट्रेटस ही हमारा ऑप्शन है. नेक्स्ट इज हाईएस्ट एल्टीट्यूड में विच टाइप ऑफ क्लाउड्स एग्जिस्ट एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड. दीज आर द सिरस. आई हैव टोल्ड यू दिस. नेक्स्ट इज which latitudes are known as the roaring 40s, furious 50s and striking 60s. So ये this is associated with the southern hemisphere 40 to 60 degree में. These zones are dominated by strong westerly winds. ठीक है, westerly winds का जो एरिया होता है दिस इज़ अराउंड 40 to 60 डिग्री. सो ये सारे जितने कंसेप्ट हैं ये कोर फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं. सो व्हेन आई विल ब्रिंग अ सीरीज ऑन फिजिकल ज्योग्राफी देन आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट कि कैसे ये फॉर्म होता है एंड कैसे विंड्स का मूवमेंट होता है, कैसे ट्रेड विंड्स का मूवमेंट होता है, ITCZ का मूवमेंट कैसे होता है, हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद द मानसून. ये सारा कुछ मैं उसमें बताऊँगा आपको. नेक्स्ट इज़ लेट्स नाउ स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट. डिफरेंट फॉरेस्ट सिस्टम बायोम्स की बात करते हैं. विच फॉरेस्ट इज ब्रॉड लीव्ड एंड एवरग्रीन एंड फाउंड इन ब्राज़ील. सो दीज आर द सेल्वा फॉरेस्ट. ठीक है, टाइगा फॉरेस्ट जो हैं दीज आर द कॉनीफेरस फॉरेस्ट. दीज आर द कॉनीफेरस फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन द कोल्ड एरियाज. ठीक है. नेक्स्ट इज विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन. सो जाएगा टाइगा, यहाँ पे जाएगा नहीं है, ये टाइगा है. दिस इज फाउंड इन द टेम्परेट रीजन. विच ट्री स्पीसीज इज टिपिकल ऑफ मानसून फॉरेस्ट. सो दिस इज टीक एंड साल. ये इंडिया के रीजन में मिलते हैं. विच ट्री स्पीसीज बिलोंग टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. दिस इज द महागनी एंड रोजवुड. अकासिया एंड बाओबाब आर द सवाना ट्रीज. नेक्स्ट है विच ट्री इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सहारा डेजर्ट. अब सहारा डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज है अकाशिया. ओके. नेक्स्ट इज विच ट्री इज आइकोनिक टू द अफ्रीकन सवाना रीजन. दिस इज द बाओबाब. ओके. These stores water in its massive trunks and it survive droughts. Which trees are found in the Mediterranean forest. तो olives and plums जो हैं वो Mediterranean forest के लिए it is very much known. अब टीक, महागनी, साल ये सारे के सारे these are the tropical variety of trees. So ये तो आंसर नहीं हो सकते. Which trees dominate the coniferous forest. अभी हमने pine and spruce देखा. So these pine and spruce these are found in cold region with short growing seasons. So these are associated with the coniferous forest. Epiphytes are typical of which zone. So जो ये epiphytes है ना these need the help of other plants to grow. So ये epiphytal growth जो है this is very much seen in the equator region. Which tree species is native to Mediterranean region and valued for its timber. This is the cedar. Cedar is very much native to the Mediterranean region. Next is एग्रीकल्चर, मिनरल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं. विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन. दिस इज चाइना. एंड इंडिया की बात करूँ मैं तो इंडिया हैज़ द सेकेंड रैंक. विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन द शुगर केन प्रोडक्शन. सो ब्राज़ील लीड्स इन द शुगर केन प्रोडक्शन. इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में उत्तर प्रदेश इज रैंक्ड फर्स्ट इन द शुगर केन प्रोडक्शन. ऑल्सो शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट इन द साउथ इंडिया. The sucrose content in the sugarcane of South India is very much higher. Also, yield जो है South India में sugarcane की is very much higher. Next है हमारा which country is notable for sugar derived from the sugar beets. This is Ukraine. Important हो सकता है, so आप इसको ध्यान में रखना. Which country produces the most coconuts globally. So Indonesia produces most coconuts. Which country is a major tobacco grower. This is China. क्यूबा इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स सिगार, बट वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे चाइना टोबैको लीफ प्रोडक्शन में इट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट. विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन. सो सोयाबीन प्रोडक्शन इज़ लार्जेस्ट इन हमारा USA. नेक्स्ट इज विच कंट्री
ranks first in the raw silk production? This is China. Now let's quickly see the questions. Which South Asian country leads in the rubber cultivation? This is Malaysia, and this is important. Okay. Next is, which Mediterranean country is known for its olive production? This is Spain. Very, very important. Spain is very much known for its olive production. Which country is the native origin of groundnut? So Brazil जो है, it is native. Groundnut जो है, that is native in Brazil. Which coconut country is rich in the coal reserves and production? So China. Which rock type commonly hosts the coal deposits? So the coal are very much found in the sedimentary rocks. Why? Because sedimentary rocks में एक favorable temperature होता है कि यहाँ पे fossil store हो जाते हैं. ठीक है. If I talk about the metamorphic, igneous and volcanic rocks, so these rocks are very much hot. Okay. So it is not possible for the fossils to exist in such a high temperature. Next is, which country is the largest exporter of the iron ore? This is Australia. Next is, which country in Africa is renowned for its copper mining? This is Zambia. Okay. Which South American nation leads in the copper production? This is Chile. Next is, which country is the top producer of the copper globally? So this is also China. Next is, which African country has notable copper reserves? This is Zambia. Which country is famous for the gold mine with the Coolgardie mine? So important, the name of the mine is important. This is located in Australia. Which country ranks highest in silver production? This is Mexico. Which mineral is derived from the ore of bauxite? This is aluminium. Which country leads in the production of uranium? This is Kazakhstan. Although जो ऑस्ट्रेलिया में है, वेरी मच हाई रिजर्व्स आर फाउंड, बट जो प्रोडक्शन है यूरेनियम का कजाकिस्तान में हाईएस्ट है. विच रिवर ड्रेन्स इनटू द नॉर्थ सी? दिस इज द रिवर राइन. ठीक है. वोल्गा जो है, इट डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी. विच रिवर ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी? दिस इज द रिवर वोल्गा. नेक्स्ट है हमारा, विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस? दिस इज द कॉन्गो रिवर. And this Zambezi river, this directly falls into the Indian Ocean. ये ध्यान रखना है आपको, this is important. Which drainage pattern is shown by the Sri Lanka river system? This is the radial pattern show करता है श्रीलंका का drainage system. Which river acts as a border between Thailand and Laos? ठीक है. अब थाईलैंड एंड लाओस के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है मेकोंग रिवर. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में होना चाहिए. Which island belong to Ecuador and has the volcanic origins? This is the Galapagos Island. Galapagos Islands. Which lake is the world's deepest freshwater lake? This is the Lake Baikal. ये है रशिया में. Okay. Victoria Lake is the largest by surface and Tanganyika Lake is the longest. ये अभी हमने देख लिया है already. So will not waste time. सारा कुछ मैंने information आपको बता दी है. Which lake is bordered by Uganda, Kenya and Tanzania? This is the Lake Victoria. Which reef lies off in the northeastern coast of Australia? This is the Great Barrier Reef. Next है. Which strait connects the Arctic Ocean to the Pacific Ocean, separating Asia from the North America? This is the Bering Strait. Next is, which strait connects the Dead Sea to the Indian Ocean? This is the Bab el-Mandeb Strait. Which canal connects the Lake Superior and Lake Huron? This is the Suez Canal. Which canal connects the Elbe estuary to the Baltic Sea in Germany? This is the Kiel Canal.